Welcome बच्चों, good morning. Today we are going to start with a new topic of chapter Newton's laws of motion NLM. The problems are based on elevator lift problem. Means if a lift is moving in upward direction or lift is moving in downward direction with an acceleration, then what is the net change in the apparent weight, in the weight of an object called apparent weight, and many more. So how we are going to discuss the motion of an elevator. See, so this is an elevator. A block of mass m is kept in an elevator. ठीक है. This is the normal reaction shown in normal reaction shown in upward direction, and this is the weight of this particular block. इसमें हमने elevator का weight नहीं लिया है अभी. ठीक है. A is the acceleration, maybe zero, maybe non-zero, maybe increase in up, maybe in downward direction, whatever different cases we are going to study here. So first of all, first case अगर हम study करते हैं, if acceleration is zero, means case of uniform velocity. Means if an elevator is moving with uniform velocity, either in upward direction or downward direction, no, doesn't matter. If acceleration is zero, then net apparent weight n is equal to एक्चुअल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्योंकि अगर हम अपवर्ड के लिए भी इक्वेशन लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे एम ए इज इक्वल टू एन माइनस जी. इफ ए इज जीरो, जीरो इज इक्वल टू एन माइनस एम जी इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू एम जी. तो ये हमारे पास आएगा, वही हमने आपको बताया. मीन्स जो अपरेंट वेट है दैट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट. अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट. ये यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन बनती है. केस नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं बेटा, केस नंबर 2 में इफ एलिवेटर इज एट रेस्ट, सेम प्रॉब्लम है. एलिवेटर इज एट रेस्ट, अगेन we would consider acceleration is zero, then apparent weight is equal to actual weight of the block inside an elevator. तो सेम यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी. ना थर्ड केस, if elevator is accelerating up, elevator is accelerating up, upward. Now the diagram from the figure, what we are saying that MA would be equal to N minus mg, implies N that is equal to MA plus mg, means m multiply by a plus g. इसका मतलब बेटा जो अपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से ज्यादा हो गया है. नाउ नेट एक्सेलरेशन इज a plus g in upward direction. Net acceleration of the system of the combined system is a plus g in upward direction, जिसकी वजह से नॉर्मल वेट आएगा निकल कर. तो यहाँ पर आप ये समझेंगे. मीन्स इन दिस केस अपरेंट वेट is greater than actual weight of the system of the block. ठीक है. उसके बाद हम केस नंबर 4 भी लिख सकते हैं. इन केस नंबर 4, accelerating downward, तो उस केस में क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और तो कोई चेंज नहीं होगा. अब की बार इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस नॉर्मल दैट वुड बी इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई a एंड n वुड बी इक्वल टू mg माइनस ma, राइट. सो n इज इक्वल टू एक्चुअल वेट में से कुछ पर्टिकुलर वेट सब्ट्रैक्ट हो गया है और नेट एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लेस हो गई है. इट इज n इज इक्वल टू g माइनस a. तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं apparent weight is less than actual weight when we are talking about in downward direction. So this is elevator problem. In different cases we are going to consider different acceleration. Net effect, net weight increases if elevator is moving upward, net weight decreases if elevator is moving downward. Let's have some questions on the basis of this particular concept. First question is on the screen. An elevator is given and this elevator is coming downward with an acceleration 2 meter per second square
a block is placed inside it, say this is block A, another block is kept on it, say this is block B. Mass of the block B is 0.5 kg. You are to calculate force exerted by B by A on B. B ब्लॉक पर कितना फोर्स लगेगा बाई ड्यू टू ए, ये आपको कैलकुलेट करना है. दिस इज वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली. तो हम ब्लॉक डायग्राम की अगर हम बात करें, ये तो ब्लॉक अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, सबसे पहले ये छोटा ब्लॉक हमने बनाया और उसके नीचे हम अगर एक बड़ा ब्लॉक बना लेते हैं, ये हमारा सेकंड ब्लॉक है, राइट. तो इन दोनों के बीच में एक एक्शन रिएक्शन पेयर होगा जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है. और इस पर्टिकुलर छोटे ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ होगा, से दिस इज mg. बड़े ब्लॉक के लिए कुछ पूछा ही नहीं है तो बड़े ब्लॉक को रिजॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. अदरवाइज बड़े ब्लॉक का वेट भी ऐसे होगा, से कैपिटल M into G एंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज n डैश. तो बात हम सिर्फ ब्लॉक ए की कर रहे हैं, तो फॉर ब्लॉक ए हमने स्मॉल m कंसीडर किया है. तो इसका मतलब ब्लॉक डायग्राम अगर हम बनाएं छोटे वाले का, तो उस पर उसका वेट बेटा नीचे लग रहा है, दैट इज mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ये आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में है. और दिस कंप्लीट सिस्टम टुगेदर विद द एलिवेटर एक्सेलरेशन ए से ये नीचे आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है. तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं, नेट डाउनवर्ड मींस m मल्टीप्लाई बाय 2 मींस 2a ma, दिस इज नॉट ma. mass multiplied by acceleration, that is 2 ma must be equal to mg minus normal reaction n. ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, n कैलकुलेट करना है. फोर्स बाय b on a, that is n in upward direction. तो वो n यहाँ से कैलकुलेट करना है. n would be equal to 2 mg minus 2m. वैल्यू पुट कर दीजिएगा, m कॉमन ले लीजिए, g माइनस 2, m कितना 0.5 kg मल्टीप्लाई बाई g कितना 10 माइनस 2, दिस इज 0.5 मल्टीप्लाई बाई 8, तो n कितना बन गया आपके पास 4 न्यूटन. दैट इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. बेसिकली इट इज अ 2 block pulley system, 1.5 kg 3.0 kg over a pulley connected with a single string, and this particular is attached to a spring balance, means spring balance के हुक से इस पुली को लटकाया हुआ है, and this particular entire system is moving up with an acceleration of g by 10 meter per second square. g by 10 meter per second square से the complete elevator is moving in upward direction. You are to calculate the reading in spring balance ठीक है, आपको यहां पर रीडिंग कैलकुलेट करनी है इन स्प्रिंग बैलेंस. नाउ एक्चुअली रीडिंग इन द स्प्रिंग बैलेंस कैसे आएगा, जितना फोर्स ये पर्टिकुलर कॉर्ड जो कनेक्टेड है, ये जितना वेट इस पे लगाएगी उतना ही तो ये रीडिंग शो करेगा. और ये पर्टिकुलर कॉर्ड कितना वेट लगाएगी, इस पर कितना फोर्स लगाएगी, उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं. देखो ये हमारे पास एक वो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम हम बना रहे हैं. बेसिकली टेंशन अगर इसमें T है तो टेंशन T ही यहाँ इसमें भी होगा. तो इसका मतलब टेंशन T अगर इधर है, टेंशन T अगर इधर है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं ना, टेंशन T एंड टेंशन T इन अपवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से है. तो इधर कितना टेंशन होगा, 2T होगा, और ये 2T के करस्पॉन्डिंग रीडिंग ही स्प्रिंग बैलेंस में आएगी. इसका मतलब इसमें 2T रीडिंग आएगी. एनी हाउ वी आर टू कैलकुलेट टेंशन T इन द क्वेश्चन एंड देन वी आर एबल टू कैलकुलेट 2T, दैट वुड बी द आंसर. नाउ बट द प्रॉब्लम इज, फर्स्ट स्टेप हम इसमें करते हैं अपना. सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो g/10 अपवर्ड एक्सेलरेशन एलिवेटर का दे रखा है, ये इसके वेट को और इसके वेट को अफेक्ट करेगा. ठीक है, इसका वेट भी बढ़ेगा और इसका वेट भी बढ़ेगा. अगर ये mg है, बट अब की बार ये क्या होगा, g प्लस g प्लस 10 मीन्स g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में g/t एडिशनल ऐड हो जाएगा. g/t एडिशनल यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा. बाय कंसिडरिंग
दीज टू ब्लॉक्स आर एट रेस्ट इनिशियली। ठीक है, अभी हमने क्या कंसिडर करना है, सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं, कंसिडर that effective weight of blocks कैसे शो कर सकते हैं हम अपने फ्री बॉडी डायग्राम से। तो देखिएगा, अगर हम एक ब्लॉक 1.5 kg का डायग्राम बनाते हैं, 1.5 किलोग्राम का डायग्राम बना रहे हैं, ये जो mg है मींस g/10 की वजह से ये क्या हो जाएगा, mg प्लस g/10। तो g प्लस g/10 कितना होगा बेटा, g/11। देख लो आप, दिस इज 11g, g/11 नहीं 11g/10। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये हमारे पास क्या होगा 11 mg/10, इस तरीके से लिख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, टेंशन कितनी है, t इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा डायग्राम हमारे पास अगर है तो दूसरे ब्लॉक को भी देख लेते हैं बेटा। दूसरा ब्लॉक हमारे पास कितना है 3.0 kg, इसमें भी एक्सेलरेशन इतना ही होगा। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन इतना ही होगा, तो इसका डाउनवर्ड वेट कितना होगा बेटा 11 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिएगा क्या कर दिया हमने ये, हाँ ठीक है, ये m लिया था हमने, m1 से इट इज m1, इसको आप m1 कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, m1g, और इसको आप कह दीजिएगा m2g, 11 m2g डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये भी हमने m2 ब्लॉक माना, और m2g प्लस g/10 वो हमने यहाँ पर किया, तो 11 m2g/10 आपके पास आ गया, और ऊपर कितना है टेंशन t। लेकिन अभी तक हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं किया। अब आप ये चीज और कंसीडर कर, दिस द इनिशियल सिचुएशन। अभी इनिशियल सिचुएशन ये है, दीज टू ब्लॉक्स आर कंसीडर्ड एट रेस्ट, तो इक्विलिब्रियम में हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन there is a difference in weight, overall there is a difference in weight and this is movable system। तो ये सिस्टम कैसे रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा, ये नीचे की तरफ आएगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में a होगा तो इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में a होगा। इसका मतलब इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन अगर a इन अपवर्ड डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन a, सेम एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग कंसीडर करेंगे। बस अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस से, इन दोनों फ्री बॉडी डायग्राम से हम यहाँ पर t के लिए सॉल्व करेंगे। लेट अस सी हाउ टू डू इट। इट इज वेरी इजी। सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम व्हाट आई मे राइट, m1a would be equal to t minus 11 m1g divided by 10। कोई कंफ्यूजन, m1 को एलिमिनेट कर दीजिएगा, a would be equal to t divided by m1 minus 11g by 10। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हम यहीं पे बना लेते हैं, इधर ही बना देते हैं। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास आया। उसके बाद सेकंड इक्वेशन हम बनाएं इस ब्लॉक के लिए, तो ये लिखेंगे आप m2a that would be equal to 11 m2g divided by 10 माइनस टेंशन t, अगेन एलिमिनेटिंग m2, तो ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 11 m2 तो एलिमिनेट हो गया, तो क्या बनेगा 11g/10 माइनस t डिवाइड बाय m2। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देते हैं। तो t डिवाइड बाय m1 माइनस 11g/10 would be equal to 11g/10 minus t divided by m2 on equating 1 and 2 from equation number 1 and 2, right? ये हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है बेटा, ये इधर था, ये इधर था, उसके बाद हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो ये क्या बनेगा, इसको सॉल्व करिए जरा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय टेकिंग t1 एक ही तरफ ले लीजिए और इनको कॉमन ले लीजिएगा। t कॉमन ले लिया हमने, ये बनेगा आपके पास 1/m1 प्लस 1/m2 एंड दैट वुड बी इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ये आपके पास बनेगा 22g/10, ये इतना बनेगा। तो यहां से टेंशन t कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। टेंशन t के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। टेंशन t वुड बी इक्वल टू 22g
डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई, ये एलसीएम होगा m1 m2 m1 प्लस m2, तो m1 m2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो देखिए बेटा m1 m2 आपको गिवन है 1.5 एंड 3.0, इजीली यू कैन पुट द वैल्यू हियर। दिस इज 20g डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई m1 m2 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3.0, 1.5 multiply by 3.0 and divide by the sum of these two terms, that is 1.5 multiply by plus 3.5, this is 4.5। 4.5 ये आपके पास आएगा 4.5, तो ये 3 बार एलिमिनेट होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, 10 से 10 आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर जी की फॉर्म में नहीं निकालना चाहते हैं तो टेंशन टी को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं जी से, तो आपके पास ये आंसर बचेगा 22 upon, it is t is equal to 20g by 10 multiply by m1 plus m1 into m2, m1 is 1.5, 1.5 multiply by 3 divide by 4.5, this is, इनको ऐड करेंगे तो 1.5 1.5 प्लस 3.0, दिस इज 4.5, ठीक है, ये इतना आ गया। तो 5 3 जा 3 से 3 एलिमिनेट होगा, तो आपके पास बन गया ये, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 5 11, तो 11g by 5, ये आपके पास आ गया बेटा 11g by 5। तो टेंशन टी कितना निकल गया 11g by 5, ये आपके पास आया टेंशन टी 11g by 5। अगर टेंशन टी 11g by 5 है तो 2t कितना बनेगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 11g by 5 मीन्स 22g by 5। सॉल्व करेंगे तो 22 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 5, तो 44 न्यूटन इज द वेट इन द स्प्रिंग, आपके पास आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 44 न्यूटन, इट विल बी द आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द क्वेश्चन इज देयर इज एन एलिवेटर, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेनिंग मशीन, ये वेनिंग मशीन है, उसके ऊपर एक मैन खड़ा है, एंड दिस एलिवेटर इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग, ए रोप ओवर अ passes ओवर अ पुली फिक्स्ड टू ए क्लैंप, एंड इस रोप को दूसरे एंड से इसने पकड़ा हुआ है। नाउ दिस, इसको ये ऐसे खींच के रखता है सो दैट ये जो एलिवेटर है वो रेस्ट पर रहे, ठीक है, इसको ये पकड़ के ऐसे खींच के रखता है सो दैट एलिवेटर रेस्ट पर रहे, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये है कि ये कितना टेंशन इसके अंदर है, कैलकुलेट द वेट शोन बाय द मशीन, जब इसने इसको टेंशन टी अप्लाई कर रखा है वट एवर इट इज, ठीक है, तो जब ये रेस्ट पर है सिस्टम तो वेट कितना आएगा इसमें, तो इसमें वेट कितना आएगा मशीन के अंदर, जो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, या ये नॉर्मल, ये जो मशीन है जितना नॉर्मल रिएक्शन मैन के ऊपर लगा रही होगी, मैन का वेट भी उतना ही होगा मशीन के अंदर, तो वो नॉर्मल रिएक्शन एन आपको कैलकुलेट करनी है व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और एट रेस्ट। तो और सेकंड पार्ट है इसके अंदर कि कितना फोर्स स्ट्रिंग पे और लगाए, कितना फोर्स स्ट्रिंग पर लगाए, ठीक है, सो दैट दिस मशीन शोज एक्चुअल रीडिंग ऑफ द मैन, मीन्स यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, पहले केस में नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट आएगा mg से, m60 है तो 60g से डिफरेंट आएगा, लेकिन सेकंड केस में n इज इक्वल टू 60g लेकर हमें कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में अगर इसी और फोर्स लगाएगा, पहले स्टेट पर ये इक्विलिब्रियम में है, और फोर्स लगाएगा तो ये एलिवेटर क्या है, मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम टू डिफरेंट सिचुएशंस एनालाइज करेंगे। इनिशियली सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर एलिवेटर एंड मैन टुगेदर एज अ सिस्टम ऑफ मासेस m प्लस कैपिटल M। बेटा इसको हम स्मॉल m कह रहे हैं क्वेश्चन में, और ये जो 50 kg है इसको हम कैपिटल M बता रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिएगा कि ये आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, एलिवेटर है, एलिवेटर इसका जो टोटल मास हम ले लेते हैं, मींस मैन इज आल्सो इन इट, मैन प्लस एलिवेटर की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो वेट है वो होगा m, मैन का ज़्यादा है, पहले मैन का लिख लेते हैं, फिर एलिवेटर का लिख लेते हैं, m प्लस m मल्टीप्लाई बाई g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एलिवेटर पे कितना टेंशन लग रहा है बेटा ऊपर की तरफ, एलिवेटर पे देखो इस एंड पे टेंशन देख लीजिएगा, इस एंड पे टेंशन T लग रहा है, दिस इज T टेंशन, और ये जो स्ट्रिंग है, ये जो इसने खींचा हुआ है वो भी टेंशन T ही लगा रहा है, ये एक ही टेंशन है, कहीं भी आप दिखा दीजिएगा, यहाँ मार्क कर लीजिए या फिर यहाँ मार्क कर लीजिए, ठीक है।
तो इसका मतलब एक टेंशन लगेगी ब्लॉक पे मींस एलिवेटर पे और दूसरी टेंशन लगेगी मैन पर, तो इसका मतलब T एंड T, और ये रेस्ट पर है, दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज एट रेस्ट, मतलब एलिवेटर इज एट रेस्ट, क्योंकि मशीन क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वेट शोन बाय द मशीन इफ मैन मैनेजेस टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। इस बॉक्स को अगर रेस्ट पे रखता है मीन सिस्टम इज एट रेस्ट, टुगेदर इज एट रेस्ट। तो m plus mg in downward direction and tension T both in upward direction and no acceleration, it means in equilibrium what we may write 2t would be equal to m plus capital M multiply by g, right? यहाँ से टेंशन T can be calculated m plus capital M multiply by g upon 2. Say this is equation number 1. Now we are gonna draw the free body diagram of man. तो ये देखिएगा हम ये मैन लिए हैं, अब मैन ऐसे ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लीजिएगा मैन का फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पर बना रहे हैं, मान लीजिएगा ये मैन हमने ले लिया। तो मैन का जो मास है mg स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैन अपना वेट इस मशीन पे लगा रहे हैं तो मशीन नॉर्मल रिएक्शन मैन पे लगाएगी, इसका मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है n इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर टेंशन T भी लग रहा है मैन पे इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये आपके पास टेंशन T हो गया। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम मैन का हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ से लिखेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर रिजल्ट हम इधर लिखते हैं, ये आपके पास आ गया T प्लस n इज इक्वल टू mg, T प्लस n इज इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय g। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली हमें निकालना है, तो mg माइनस t की वैल्यू को इधर पुट कर दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट हेयर, तो n आपके पास आ जाएगा mg माइनस m प्लस m मल्टीप्लाई बाय g अपॉन 2। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा mg, सॉल्व कर लीजिए, mg माइनस mg बाई 2 एंड माइनस mg बाई 2, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो बेटा आएगा आपके पास mg बाई 2 माइनस mg अपॉन 2, ये आपके पास आ गया m माइनस m मल्टीप्लाई बाई g अपॉन 2, ये बेटा नॉर्मल रिएक्शन आ गया। पुटिंग द वैल्यूज 60 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाई g divided by 2, that is 15g is the answer to first problem. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया, वेट शोन बाय द मशीन इज या नॉर्मल रिएक्शन इज दैट इज 15g, 15 multiplied by 10 150 Newton would be the answer. Now come to the second part of the question, what force on the rope so that machine shows actual weight of the man, means ये जो सिस्टम है अगर इस पर्टिकुलर स्टेट से, फर्स्ट वाली स्टेट से ज़्यादा फोर्स लगाएगा तभी इसमें एक्चुअल वेट आ पाएगा, अदरवाइज इसमें वेट ज़्यादा आएगा, उसको कम करने के लिए ये खींचना पड़ेगा, खींचने के लिए ये मोशन, ये जो सिस्टम है, ब्लॉक है, बॉक्स है, वो मोशन में आ जाएगा विद एन एक्सेलरेशन a, दैट इज द कॉन्सेप्ट। लेट अस सी द फिगर। अब की बार हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं बेटा, सबसे पहले लेट अस कंसीडर मैन सेपरेटली, मैन को सेपरेटली देखें, ये हमने मैन बनाया, इस तरह से बनाया था पहले भी हमने मैन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका mg ऐसे दिखाया था, mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड टेंशन T would be in upward direction, ये तो होगा ही होगा, as well as the complete system is moving in upward direction, तो acceleration A would be in upward direction, ये additional term होगा, this is for second part of the question। तो मैन के लिए हमने ये बनाया है, तो कैसे हम इसको लिखेंगे, MA would be equal to T plus N minus mg, T plus N minus mg, राइट। तो यहां से हमने ma लिखा और इस इक्वेशंस को हम, इस इक्वेशन को थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, तो ma would be equal to t plus, now what is n, बेसिकली इस केस में n क्या होगा, mg के ही बराबर होगा, यही तो यहाँ पर मेन पॉइंट है।
what force on the, so that the machine shows actual weight of the, means normal reaction is equal to actual weight of the man, n is equal to mg, तो यहाँ आपको mg ही लेना होगा minus mg, eliminating both the terms, you are left with tension T is equal to ma. Say this is equation number 1. Now considering man and block together as a system, combined system, ये हमने दोबारा से उसी वही situations consider की हैं, कुछ भी अलग नहीं किया है। ये आपकी बार इसमें man और block together हैं, इनका जो मास होगा स्मॉल m कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और हमने क्या दिखाया है बेटा, m प्लस ये इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद टेंशंस, दिस इज टेंशन T, एक इधर वाले एंड पे, एक इधर वाले एंड पे, और एक हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर, एक्सेलरेशन A दिखाएंगे, ये एक्सेलरेशन A इन अपवर्ड डायरेक्शन। आई थिंक इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। वो जो मशीन है वो सब इसके अंदर ही है, अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर। और तो इस फिगर से हमारे पास क्या डायग्राम बनेगा बेटा, क्या इक्वेशन बनेगी, दिस m प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन A वुड बी इक्वल टू 2t minus m plus capital M multiply by g. Is it right? तो t is equal to m में यहाँ से पुट करेंगे, क्या कैलकुलेट करना है एक्चुअली हमें यहाँ से, what force on the rope, तो टेंशन t कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टेंशन t कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस को जैसा आपका मन करे वैसे आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने होगा। सो लेट अस ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन हियर। So put t here, एक्सेलरेशन ये कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, फिर t इक्वल टू m में से हम एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। t ये आ गया बेटा m प्लस m इंटू a, 2t कितना आ गया 2ma माइनस m प्लस m मल्टीप्लाई बाय टेंशन नहीं लेने का, बहुत इजी है जी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन है कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, ये बनेगा m प्लस m माइनस 2m कॉमन एक्सेलरेशन a would be equal to minus m plus capital M multiply by g। तो ये क्या आया आपके पास, that is m minus m multiply by acceleration A minus m plus m multiply by g। देखिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपके पास बनेगा m माइनस कैपिटल M, उल्टा कर दिया, m माइनस m, ये स्मॉल m माइनस कैपिटल M, एक्सेलरेशन A, ये माइनस को एलिमिनेट कर दो, m प्लस में m प्लस कैपिटल M, क्योंकि कैपिटल M बड़ा है, इनटू में g, एक्सेलरेशन ये कैन बी कैलकुलेटेड बाय m कैपिटल M डिवाइड बाय m कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय g, पुटिंग ऑल द वैल्यूज, this is 60 minus 30, sorry plus 30 divided by 60 minus 30 multiply by g, that would be 90 divided by 30, 90 divided by 30, this is 3g would be the acceleration in this particular case। a is equal to 3g यहाँ से आपके पास आ गया, तो टेंशन t है क्या हम लिख सकते हैं, विजिबल ऑन द स्क्रीन, यस। तो देखिएगा हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आपके पास आ गया 3g। तो टेंशन t हमने लिखा, टेंशन t इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, मास इज 60, एक्सेलरेशन इज 3g, 3 मल्टीप्लाई बाय ये, तो आपके पास आ गया 1800 न्यूटन। That is the answer to this particular question, second part। Very interesting question, very easy question, आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो एलिवेटर प्रॉब्लम्स में बस इतना ही, इस तरह की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करिए और चैनल पर बने रहिए। आई होप कि आपको ये हमारा लेक्चर समझ आया होगा, प्रॉब्लम्स एलिवेटर से रिलेटेड समझ आई होंगी, कैसे हम इनको डील कर सकते हैं। अब चाहे इसमें कोई पेंडुलम लटका रखा हो एलिवेटर के अंदर या कोई और प्रॉब्लम हो, इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पर बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स के सामने लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।